हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ और फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। ये टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन को ही कंटिन्यू करता है फॉर सम जनरल फंक्शंस। So let us begin with, let us recall, if y is equal to f of x is a 1 and onto function, then its inverse function exists and it is written as x यहाँ रख के ये f उधर चले जाता है और लिखा जाता है x equal to f inverse y. If y is 1 and onto, then its inverse exists and it is also 1 and onto function. तो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है, हियर y डिपेंड्स ऑन x और यहाँ रोल चेंज हो जाते हैं, नाउ x डिपेंड्स ऑन y. नाउ थ्योरम रिलेटेड टू इनवर्स फंक्शन, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ऑन एन इंटरवल I such that its inverse function, that is x equal to f inverse y, exists, then that inverse function is also differentiable function of y on the interval f of I. Now what is f of I? जैसे डोमेन में x था तो उसका इमेज कोडोमेन में f of x बोलकर लिखा गया था। इसी तरह से डोमेन में जो भी इंटरवल I होगा उसका इमेज विल बी f of I. So inverse function x equal to f inverse y is differentiable function of y in the interval f of I, and this the derivative of x with respect to y is dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, provided this denominator dy by dx is not equal to 0. There is another forms of writing this result. Since x is f inverse y, we write here in place of x. So it is ddx of f inverse y is equal to y was f of x. तो y की जगह पर लिखा है f of x. So it is 1 upon ddx of f of x. Also, derivative of f of x is written as f dash x. So dash notation के साथ में this become 1 upon f dash x और left hand side में it is derivative of f inverse y with respect to y. Note the variables. This is function of y और उसी को differentiate किया जा रहा है with respect to y. So we write dash of what? f inverse. So it is derivative of f inverse with respect to y. So these are another notations for the same result, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. This is the theorem related to inverse function, derivative of inverse function. Now this result gives us, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि किया तो dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. So from above theorem we can write dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. Now let us see examples. We are solving exercise problems. So exercise 1.2 of new books of mathematics, page number 29. Find, question number 1, find the derivative of function y equal to f of x having using the derivative of inverse function x equal to f inverse y in the following. फिर से एक बार रीड कर रहे प्रॉब्लम. Find the derivative of the function y equal to f of x using the derivative of inverse function x equal to f inverse y in the following. First example is y equal to root x. एक्चुअल सॉल्यूशन में जाने के पहले हम जरा इसको डिस्कस करते हैं. y equal to root x, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ऑफ रूट x. y is a function of x, so we can differentiate this directly
with respect to x, so we'll get dy by dx is equal to derivative of root x is 1 upon 2 root x. तो सिंपल सा रिजल्ट, सिंपल सा एग्जांपल है, डायरेक्ट इसका आंसर हमको मिल सकता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमको y का डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग इट्स इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन. मीन्स इसका जो इनवर्स होगा मीन्स x इन टर्म्स ऑफ y, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से ये गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. सो सी, this is of the form, the function y equal to root x is of the form y equal to f of x. To find its inverse, that means here y in terms of x, तो जब इसका इन्वर्स फाइंड करना होगा इसका मतलब हमको x in terms of y फाइंड करना है, and it is written as x is equal to f inverse y. तो इस रिलेशन को हमको x in terms of y में कन्वर्ट करना होगा. तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं 1 को, स्क्वायर करने पर we will get x equal to y square. Now here x depends on y and it is x equal to f inverse y which is equal to y square. इसको डिनोट कर देते हैं नंबर 2 से. Now here x is function of y, so we can differentiate this with respect to y and we get dx by dy. Means derivative of this f inverse y with respect to y is equal to derivative of y square with respect to y. Now listen carefully, this is y square and we are differentiating it with respect to y, so derivative will be 2y. जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब x से लें तो वो होता है 2x, लेकिन यदि a स्क्वायर का डेरिवेटिव x से ले तो उस केस में a स्क्वायर कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी वेरिएबल से लेने पर दैट डेरिवेटिव विल बी 0. तो यहाँ पर y स्क्वायर को y से डिफरेंशिएट करें, देयरफॉर द आंसर इज 2y. नाउ दिस इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. वी हैव टू यूज दिस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. सो बाय थ्योरम, थ्योरम मीन्स थ्योरम ऑफ इनवर्स फंक्शंस, फॉर वन मीन्स फॉर दिस गिवन फंक्शन dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. This is the result theorem. And what is dx by dy? यहाँ पर पुट कर दो तो it is 2y. So dy by dx is equal to 1 upon 2y. अब यहाँ एक चीज़ नोट करने की है, जब हम y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हो तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ऐसे समय हम हमारे रिजल्ट को भी कम्प्लीटली x में एक्सप्रेस करते हैं. तो पुट y इज इक्वल टू वो रूट एक्स बाय 1. सो दिस इज द आंसर. ओरली भी हमने चेक किया था एंड इट टैलीज द आंसर. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स. सो हियर y इज इन टर्म्स ऑफ x. दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x. अब इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, इसका मतलब x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है, मतलब x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, ये हमको फाइंड करना है. तो इसको x के लिए फ्री करेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ से इसको फ्री करके x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते. तो सबसे पहले ये बाहर का अंडर रूट, तो वो हटाने के लिए स्क्वायर कर देते 1 को, स्क्वायरिंग 1, तो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट का स्क्वायर हो गया कैंसिल एक दूसरे से, बचा 2 माइनस रूट एक्स. अब ये रूट एक्स को एक तरफ रखते हुए ये बाकी की चीज़ दूसरी तरफ कलेक्ट कर लो. तो माइनस रूट एक्स होने से उसको हम इधर लेकर गए लेफ्ट साइड में, वाई स्क्वायर को राइट साइड में, तो इट इज़ रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर. अभी भी एक्स पूरी तरह से फ्री नहीं हुआ है, रूट है उसके ऊपर, तो उसको हटाने के लिए फिर से स्क्वायर करो, अगेन स्क्वायरिंग वी गेट एक्स इक्वल टू ये इसका होल स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो अब ये फंक्शन ऑफ वाई हो गया, दैट मीन्स एफ इनवर्स वाई बन गया. So therefore x which is f inverse y is equal to 2 minus y square का whole square. इसको नंबर दे देते हैं 2. Now here x is function of y, so we can differentiate this with respect to y. So we get dx by dy is equal to, अब जरा ध्यान देंगे, ये है 2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो मेन फंक्शन बाहर से यदि हम देखें
तो बाहर का फंक्शन दिख रहा है स्क्वायर फंक्शन, और उसके अंदर दिख रहा है 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो कुछ याद आता है? यस, इट इज कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय वी यूज चेन रूल। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? बाहरी फंक्शन का। मतलब इसको यदि हम समथिंग का स्क्वायर ट्रीट करें तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2 टाइम्स समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। अब ये ध्यान रखिएगा, हमारा वेरिएबल कौन सा है? y। तो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू y बाय चेन रूल। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कांस्टेंट है 2, उसका डेरिवेटिव बन गया 0, माइनस अपनी जगह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y से 2y। इसको ठीक ठाक कर लेते हैं, ये सब मल्टीप्लिकेशन में टर्म है, तो -2 इंटू 2 माइनस 4y ब्रैकेट में 2 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज dx बाई dy। अब इसकी हेल्प से हमको गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, उसके लिए थ्योरम अवेलेबल है। सो बाय थ्योरम वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू 1/dx बाई dy इज इक्वल टू, ये dx बाई dy की जगह इसकी जो एक्सप्रेशन है वो पुट कर देते हैं, -4y 2 ब्रैकेट 2 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ सिंस दिस इज ओरिजिनल फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x, सो ये जो भी y यहाँ दिख रहे हैं उसको हम x के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो -4, ये माइनस साइन न्यूमरेटर में कर दिया, 4 अपनी जगह, y की जगह लिखा √2 माइनस √x, फिर एक बिग ब्रैकेट बना के 2 माइनस वाई का स्क्वायर। y का स्क्वायर करने से अंडर रूट गया तो वो बन गया 2 माइनस √x। अब ये ब्रैकेट यदि ओपन कर ले तो 2 माइनस 2 ये 0 बन गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये रह गया √x। इसको रीराइट कर लिया, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में √x है, ये 4 है और ये कंप्लीट रूट ऑफ 2 माइनस √x है। दिस इज द आंसर, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। रिमेनिंग प्रॉब्लम यस यू कैन डेफिनेटली सॉल्व विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ these representative problems. Now next problem is y is equal to e power 2x minus 3. So this is of the exponential form. Y is in the form of exponential function. So y equal to f of x. So first we find its inverse. That means x in terms of y find करेंगे, means x is equal to f inverse y के फॉर्म में फंक्शन हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये बेस e हटाना चाहते हैं, और जब कभी इस तरह का प्रॉब्लम हो और हमको ये बेस हटाना हो तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब ये लॉग वाई लेफ्ट हैंड साइड का तो ऐसा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर है e पावर 2x माइनस 3 और लॉग के साथ कुछ नहीं दिखा, मतलब ये नेचुरल लॉगरिथम है टू द बेस e, एंड देयर इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ लॉगरिथम log a पावर x विथ बेस a इज x। मतलब यदि ये बेस फंक्शन का बेस और लॉग का बेस सेम हो तो ये जो एक्सपोनेंट में जो रहता है वो हमको रिजल्ट बोलकर मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, फंक्शन का बेस e है और लॉग का बेस भी e है, तो ये रिजल्ट की हेल्प से ये रह जाएगा 2x माइनस 3। अब x को एक तरफ रहने दो, तो ये जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज देते हैं, -3 उधर जाके प्लस हो गया, फिर 2x है, हमको x चाहिए केवल, तो 1/2 उधर चले जाएगा, 2 उधर चले जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3 प्लस लॉग y। अब ये हमको x इन टर्म्स ऑफ y दिख रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट, ये जो राइट हैंड साइड है दिस इज नथिंग बट f इनवर्स y। तो वी कैन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx बाई dy इज इक्वल टू 1/2 के साथ में फंक्शन ऑफ x है, तो 1/2 कांस्टेंट अपनी जगह, 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस अपनी जगह log y का डेरिवेटिव y के साथ इज 1/y। ब्रैकेट ओपन कर लिया तो इट इज 1/2y। अब इसकी हेल्प से ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू 1/dx बाई dy बाय थ्योरम, और ये dx बाई dy की जगह ये एक वैल्यू पुट करो 1/2y। रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकल है, सो बाय सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 2y। Now what is y? By 1 it is e power 2x minus 3. So dy by dx is equal to 2 times e power
2x माइनस 3। इसको कंपोजिट फंक्शन से डायरेक्ट करना होता तो हम आंसर वेरीफाई कर सकते। देखो y इज इक्वल टू ई पावर 2x माइनस 3 है, तो e के पावर में x अकेला नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, तो कंपोजिट फंक्शन बन गया ये। तो जब हम dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, मतलब e पावर 2x माइनस 3 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी 2। वही आंसर है हमारा। ओके, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू log ऑफ x बाय 2 टू द बेस 2। जब हमारा लॉग नेचुरल लॉगरिथम होगा तो कुछ लिखा नहीं होगा, जब बेस में कुछ लिखा होगा तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल लॉगरिथम। उससे रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना मतलब x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है। तो ये x के साथ जो लॉग है इसको यहाँ से हटाना होगा। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है, पहले वो रिकॉल करते हैं। वी नो दैट log x टू द बेस a इज इक्वल टू y यदि हो तो ये जो बेस है ये बेस यहाँ से चलकर दूसरे साइड में चले जाता है और वहाँ बेस बन जाता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कन्वर्ट्स इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x इज इक्वल टू ये जो बेस है ये यहाँ से चलकर इधर आ गया, तो ये बन गया x इज इक्वल टू ए पावर y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस हो गया a। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर ये जो बेस है 2 ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो बन जाएगा 2 पावर y, इधर रह जाएगा x बाय 2। यस, 1 इम्प्लाई x बाय 2 इज इक्वल टू 2 पावर y। हमको x चाहिए था तो 2 उधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो x विल बी इन द फॉर्म ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 पावर y। दोनों बेस सेम है तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से पावर ऐड हो जाएंगे, 2 पावर y प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों? क्योंकि x इज इन टर्म्स ऑफ y है। अब देखो 2 पावर y अकेला नहीं है, 2 पावर y प्लस 1 है, मतलब फंक्शन ऑफ y है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमको कंपोजिट फंक्शन याद आएगा यहाँ पर। तो a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x? a पावर x log a। तो इसको हम ऐसा समझते हैं 2 पावर समथिंग, तो इसको डिफरेंशिएट करते समय 2 पावर समथिंग इंटू लॉग 2, ये तो उसका ओरिजिनल फॉर्म हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग y प्लस 1 का डेरिवेटिव y से बाय चेन रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो 1 प्लस 0 विल बी 1। सो दिस इज dx बाय dy। ये हुआ इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसकी हेल्प से गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई बाय थ्योरम। यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन पुट करो, 2 टाइम्स y प्लस 1 इंटू लॉग 2 ये बाय 3 डी एक्स बाई डी वाई। अब ये y इन टर्म्स ऑफ x था तो यहाँ जो y है इसको इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कर देते हैं। व्हाट इज 2 पावर y प्लस 1? इट इज x बाय 2, तो इसकी जगह पर रख देते हैं x इंटू लॉग। So this is the answer. Okay. Remaining problem you can solve definitely. First try to solve solved problems and then go for exercise problems. Now second question of exercise 1.2. क्वेश्चन का टाइप अब देखते हैं जरा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। Again, find the derivative of the inverse function of the following. Now, take the problem y equal to x into 7 power x. Find the derivative of inverse function. मतलब ये तो y equal to f of x के फॉर्म में है। अब इनवर्स फंक्शन मतलब x equal to f इनवर्स y हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर आसान है x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना? नहीं। अच्छा, उसने ऐसा बोला भी नहीं है कि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। हमको फाइंड करना है केवल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है हमको? dx बाय dy। अब क्योंकि हम यहाँ पर
x को पूरी तरह से y में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड थ्योरम है dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, वो मदद करेगा. सो इन दैट सेंस फर्स्ट वी फाइंड dy बाय dx. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू f ऑफ x. सो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय dx, ये दोनों फंक्शन x से रिलेटेड है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला रिकॉल करो, अप्लाई करो. 7 पावर x log 7 ये अपनी जगह, x का डेरिवेटिव x से 1. दोनों टर्म में 7 पावर x सेम दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट में रह गया x इंटू log 7 प्लस यहाँ रह गया 1. सो दिस इज dy बाय dx. नंबर 2 दे देते हैं. नाउ इनवर्स फंक्शन ऑफ 1, मतलब ओरिजिनल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ 1 विल बी ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू f इनवर्स y एंड which has derivative dx by dy by theorem of inverse function that dx by dy is same as 1 upon dy by dx. so ये जो dy by dx हमने फाइंड किया हुआ है 2 में, वो रख दो यहाँ पर. 7 पावर x ब्रैकेट में x log 7 प्लस 1. अब एक चीज़ यहाँ नोट करने की है, हियर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y हमने फाइंड किया, मतलब यहाँ y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये x डिपेंड्स ऑन y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो क्या हम ये पूरे प्रॉब्लम को y के टर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, ये पूरा प्रॉब्लम y के टर्म में आसानी से चेंज नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज रहने देंगे. क्यों? देखो जरा, 7 पावर x इंटू एक्स, ये ब्रैकेट के साथ ओपन होगा तो यहाँ आएगा, तो ठीक है, उसके लिए तो y लिखा जा सकता है, उसके लिए y लिखा जा सकता है. लेकिन ये जब दूसरे ब्रैकेट दूसरी टर्म के साथ जाएगा तो प्लस 7 पावर x आएगा. अब व्हाट विल बी 7 पावर x? 7 पावर x यदि लिखना भी चाहें तो दैट विल बी y अपॉन x. इसका मतलब हम उसको पूरी तरह से y में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर लेट इट बी एज इट इज. सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स. हमको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसके इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एफ ऑफ, सेम पैटर्न पे सॉल्यूशंस कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं. डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ सम है तो डेरिवेटिव ऑफ सम विल बी सम ऑफ डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाई एक्स. दो टर्म है तो इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, तो एलसीएम इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई है वो 2x स्क्वायर प्लस 1. नाउ इनवर्स फंक्शन ऑफ 1 विल बी ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू f इनवर्स y and which has derivative dx by dy. By theorem it is given as 1 upon dy by dx. पुट करो यहाँ पर एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स. डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में चलेगा, एंड दिस विल बी द आंसर. फिर से ये x को हम पूरी तरह से y में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सो इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. यानी जो इसके पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही लैंग्वेज है. एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. थोड़ा सा काम यहाँ पर ज़्यादा है. फिर से एक बार देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, derivative of inverse of given function, okay, and also find their value at the given point. देखते हैं, y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 0 मीन्स ये गिवन फंक्शन है, हमको इसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0. अब जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो रोल चेंज हो जाएंगे, x इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा.
जब कोई वैल्यू दी हुई हो तो ये तो एक वैल्यू दी है, तो इस वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग y क्या होगा ये फाइंड पहले कर लिया जाएगा। सो इसको कुछ नंबर दे देते हैं, ये रिलेशन को 1। तो व्हेन x इज 0 दिस इज गिवन, 1 इम्प्लाई x की वैल्यू 0 रखो, तो 1 इम्प्लाई y इज इक्वल टू ई पावर 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, ई पावर 0 यानी 1, ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस 2 मतलब 3, 1 प्लस 2 इज 3। सो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू होगी 3, मतलब दोनों एसोसिएटेड वैल्यू है। फॉर x इक्वल टू 0 y इज 3, वाइस वर्सा वी कैन से दैट फॉर y इक्वल टू 3 x विल बी 0। नाउ अब यहाँ हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं क्या, मतलब x को पूरी तरह से y में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, नहीं। सो हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का एज इट इज 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू 1 दैट इज 3 और 2 का डेरिवेटिव इज 0। सो दिस इज dy बाई डी एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ 1 विल बी dx बाई dy, जैसे हम इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और ये dx बाई dy हमको थ्योरम की हेल्प से मिल जाएगा। dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। अब देखो पॉइंट हमको x इक्वल टू 0 दिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड में dx बाई dy जो एक्सप्रेशन है वहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज y, जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे है, जो डिपेंडेंट है वो ऊपर है। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू लेनी होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, और यहाँ है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ नीचे है x, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसलिए इनका जो रिलेशन है, करस्पॉन्डेंस है, ये अब यहाँ काम आएगा। तो एट गिवन पॉइंट वी ऑब्टेन dx बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 3। लिखने का पैटर्न समझ लो, ब्रैकेट लिख के उसके साइड में नीचे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। ओके, नाउ पुट दिस dy बाई डी एक्स जो है हमारे पास में 2 में फाइंड किया अपन ने, ई पावर x प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखो, ई पावर 0 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4। सो दिस इज द आंसर, 1 बाय 4 इज द आंसर। मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन at x equal to 0 which gives y equal to 3. So derivative of inverse at y equal to 3 is 1 by 4. ठीक है? Hope you are understanding the things. Another example, y equal to sine of x minus 2 plus x square at x इक्वल टू 2। सो गिवन फंक्शन को नंबर दे देते 1। अब ये तो x की वैल्यू दी है, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग y क्या होगा, अभी जैसे हमने देखा था वो पता करते हैं। x इक्वल टू 2 पर y गिव्स साइन ऑफ 2 माइनस 2 यानी साइन 0 प्लस 0 का स्क्वायर। व्हाट इज साइन 0, 0 प्लस 0 मीन्स 0। मतलब जब x 2 होगा तो करस्पॉन्डिंग y इज 0। वाइस वर्सा कह सकते हैं, यदि y 0 होगा तो x विल बी 2। नाउ डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ साइन x है क्या डायरेक्टली, नहीं, इट इज साइन ऑफ x माइनस 2, मतलब साइन ऑफ समथिंग, और हमको x से डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल आ गया, प्लस अपनी जगह पर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। पहले तो दो सम का फंक्शन है तो सम रूल लग जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, और उसके अंदर फिर यहाँ चेन रूल लगेगा। तो वी गेट साइन का डेरिवेटिव कॉस समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव x के साथ 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये जहाँ जहाँ रीज़न लिख सकते हैं वहाँ वहाँ रीज़न मेंशन किया करो यूजिंग सम रूल एंड चेन रूल। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। हमको तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए था। सो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ 1 इज dx बाई dy।
which is given by theorem as dx by dy equal to 1 upon dy by dx. यदि यहाँ पर केवल ये आंसर रख देते तो ये हो जाता था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, लेकिन हमको एट पॉइंट फाइंड करना है x इक्वल टू 2. तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट है, यहाँ y है यहाँ x है. तो एट गिवन पॉइंट कौन से तरफ कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख देंगे. y 0 आया था तो dx बाई डी वाई एट y इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एंड x इज 2. अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 अपॉन dy बाई dx का एक्सप्रेशन फाइंड किया था cos x माइनस 2 प्लस 2x एट x इक्वल टू 2. ये यहाँ से 2 से रखो, x की वैल्यू 2 रखो. 2 माइनस 2 0, cos 0 प्लस 2 इंटू 2 4, cos 0 इज 1, 1 प्लस 4 5. आंसर इज 1 बाय 5. राइट. नाउ अनदर नोटेशन. प्रॉब्लम का कैटेगरी तो वही दिख रहा है, नोटेशंस थोड़े चेंज हो गए. इफ फोर्थ प्रॉब्लम, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड एफ इनवर्स का डेरिवेटिव. दिस डैश मीन्स डेरिवेटिव एट 0. अभी तक के हम y नोटेशन में काम कर रहे थे, एफ इनवर्स y का डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे. अब यहाँ नोटेशन y की जगह पर एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स का डेरिवेटिव बोला जा रहा है. सो डिनोट दिस एफ ऑफ एक्स एज y. स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं और समझने के लिए हमारे लिए आसान भी होता है. तो डिनोट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 1. Now its inverse is of the form x in terms of y and x is equal to f inverse y, and we have to find f inverse का derivative at 0 means when y is 0. ठीक, that is derivative of inverse function when y is 0. तो अब यहाँ y की वैल्यू दी हुई है, तो अब उसके लिए करस्पॉन्डिंग x क्या होगा वो देखना होगा. तो when y is 0, our relation 1 imply x cube plus x minus 2 is equal to 0. अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इक्वेशन का डिग्री 3 है. तो जब क्यूबिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पर एक रियल रूट तो डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं. क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड के बदले सिंथेटिक डिवीजन आसान होता है. तो इसको पहले कंप्लीट फॉर्म में लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है तो उसके साथ 0 कोएफिशिएंट और फिर कोएफिशिएंट्स लिखे हैं. यहाँ देखो 1, एक्स स्क्वायर का 0, एक्स का 1 और फिर कांस्टेंट माइनस 2. अब ट्रायल और एरर मेथड से चेक करते हैं. तो 1 से स्टार्ट करते हैं. ये 1 पहले एज इट इज़ नीचे, ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. 0 प्लस 1 इज 1. Now this 1 into 1 is equal to 1. 1 plus 1 is 2. Now this 1 into 2 is 2. Minus 2 plus 2 is 0. So remainder is 0. तो ये 3 टर्म हैं, ये हमको एक फैक्टर देंगे और यहाँ पर ये x की वैल्यू है. तो x इक्वल टू 1 यदि बोला तो फैक्टर x माइनस 1 बन जाएंगे. Therefore this left hand side can be written as, यहाँ से बना x माइनस 1 और ये जो नीचे पार्ट दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, कोएफिशिएंट दिख रहा है, उससे बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट टर्म 2 इक्वल टू 0. 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो 1 फैक्टर इज 0 और सेकेंड फैक्टर इज 0. तो x माइनस 1 इज 0 गिव्स x इक्वल टू 1 एंड दिस इज रियल रूट. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 फैक्टर तो नहीं बन रहे इसके. और यदि आप फॉर्मूला मेथड से फाइंड करें x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके देखिएगा ये, तो आप देखेंगे कि दैट वैल्यू इज नॉट रियल वैल्यू. वैल्यूज ऑफ x विल नॉट बी रियल फॉर दिस इक्वेशन. सो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं. These are absurd values, meaningless values in our case.
तो हमको जब y इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू मिल गई 1. ठीक. नाउ कम टू अवर रिलेशन, ओरिजिनल रिलेशन 1. फाइंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. सो f नोटेशन में प्रॉब्लम था तो हम f नोटेशन में ही कंटिन्यू करते हैं. f डैश x इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 1. इसको नंबर दे दिया 2. देन बाय थ्योरम ऑन इनवर्स फंक्शन dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx. हमने डिफरेंट नोटेशन में लिखा था ये थ्योरम का रिजल्ट. x मीन्स f इनवर्स y, y मीन्स fx. तो इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स y, मतलब f इनवर्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन f डैश x. हैंस एट गिवन पॉइंट वी ऑब्टेन. यहाँ पर अब वेरिएबल है y, तो यहाँ y की वैल्यू लिखी जाएंगी y 0, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो एट x इक्वल टू 1 एंड दे आर रिलेटेड. सो y की वैल्यू रख दो 0. सो इट इज़ f इनवर्स का डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन फाइंड किया था पीछे, f डैश x इज 3x स्क्वायर प्लस 1. यहाँ रख दिया 3x स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल टू 1. पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1. सो इट इज 3 इंटू 1 1, हाँ सॉरी 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4. सो आंसर इज 1/4. तो डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स एट 0 इज इक्वल टू 1/4. समझ आ रही है बातें? चलिए आगे देखते हैं. एग्जाम्पल 5. एंड फॉर दिस ट्यूटोरियल this question will be the last question. Using derivative, prove tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Similar results are for sec inverse and sin inverse. Sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2. Here condition is given mod x is greater than or equal to 1. And third is sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. तो जब कुछ दिया नहीं है इसका मतलब वो जनरल एक्स के लिए ट्रू है. तो प्रूफ करते समय हमको ये ध्यान रखना होगा कुछ कंडीशन दी है या नहीं दी है. फर्स्ट एग्जांपल प्रूफ करते हैं. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स से रिलेटेड दिख रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसको डिनोट कर देते एफ एक्स से. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स. मतलब जब ये एफ ऑफ एक्स हो गया मतलब हमको शो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. और किससे शो करना है, यूजिंग डेरिवेटिव. तो चलो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते पहले. तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स. हमने फॉर्मूले देखे हैं, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव x से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अपनी जगह कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव x से -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेम एक्सप्रेशन से अपोजिट साइन है तो दोनों का एडिशन विल बी 0. अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0. तो कोई फंक्शन का डेरिवेटिव कब 0 होता है, यदि वो फंक्शन खुद कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा. तो जब भी ऐसा कुछ दिखे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0, मतलब द फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट. हम अपनी तरफ से एक सिंबल दे देते से c मीन्स एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट c फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब यहाँ कोई भी x की वैल्यू यदि पुट करें तो इस पर तो कुछ बदल होने वाला नहीं है. दिस इज फ्री फ्रॉम x, कांस्टेंट है. कोई भी x रहे, फंक्शन इज c, देयरफॉर इट इज कांस्टेंट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन x. तो कोई भी x यहाँ रखा जा सकता है, लेकिन हमको कैलकुलेशन करना है. तो फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर कन्वीनियंस वी टेक x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 लेके उसको 1 में पुट कर दें. तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0. अब tan इनवर्स 0 क्या होता है वो सोचना है हमको, कॉट इनवर्स 0 क्या है वो सोचना है. मतलब
ऐसा कौन सा एंगल है जिसका tan 0 हो, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका cot 0 हो। तो यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक के सब रिजल्ट्स, फॉर्मूलेज, वैल्यूज़ रिकॉल करें तो आप पाएंगे tan 0 डिग्री इज 0 एंड cot 90 डिग्री और π/2 रेडियन इज 0। ठीक, तो ये tan जब उधर चले जाएगा तो tan इनवर्स 0 विल बी इक्वल टू 0। ये जब cot हम उधर देखेंगे तो cot इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। रख दो वैल्यूज, π/2, 0 प्लस π/2 इज π/2। So f of 0 is equal to π/2 and this is the constant c. So f of x is equal to π/2. Now what is f of x? Tan inverse x plus cot inverse x is equal to π/2 as desired. ठीक, अब इसकी हेल्प से सेकेंड और थर्ड किए जा सकते हैं, बट लेट अस सी सेकेंड, फटाफट देख लेते हैं। लेट f of x इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x फॉर mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट f of x इज इक्वल टू π/2 फॉर mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यूजिंग डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो f dash x इज इक्वल टू sec इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला है 1/x √x²-1 प्लस अपनी जगह कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x -1/x √x²-1, दोनों का एडिशन 0। Therefore f of x must be constant, say c, means f of x is c for mod x greater than or equal to 1. For convenience we take some value of x, so mod x is greater than or equal to 1 बोला है तो x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, पुट करो 1 में, f of 1 is equal to sec inverse 1 plus cosec inverse 1. Now recall the values, sec 0 is 1, cosec π/2 is 1, so sec inverse 1 is 0, cosec inverse 1 is π/2, रख दो यहाँ पर 0 and π/2, addition is π/2, so this will be our constant c. so यहाँ पर रख दो c की वैल्यू π/2, so f of x is equal to π/2 for mod x is greater than or equal to 1. What is f of x? It is sec inverse x plus cosec inverse x is equal to π/2 for mod x is greater than or equal to 1. जो तीसरा एग्जाम्पल है वो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे अगले ट्यूटोरियल में, फिर और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, जय गणित।